Good morning, students. We are discussing chapter number 9 of India, People and Economy, and the chapter name is Planning and Sustainable Development in Indian Context. In this chapter, we discussed about the planning. We discussed about the target area planning, hill area development programs, and programs which are for the welfare of the drought prone areas in our previous classes. Yesterday, we started one case study that is based on the ITDP, that is Integrated Tribal Development Project in Bharmor region. Bharmor region lies in the Himachal Pradesh, in which we discussed first the Gadis, a tribal community living there. What are the problems there? Why this area is lag behind in economic development? We discussed about the latitudinal and longitudinal extension of the area. So today we are going to discuss the aims and priorities of ITDP. ITDP में confuse नहीं हो रहा है. ITDP, that is Integrated Tribal Development Projects. So aims and priorities of the ITDP. अगर मैं aims और priorities की बात करता हूँ ITDP के, so the first aim or the priority is what? To improve the quality of life of the Gadis which are living in this area. That is the first priority कि उनकी life को, उनके living standard को क्या करना है, हमें improve करना है. Next one, that is this map we discussed yesterday. Yes. Next one, next target, narrowing the gap in the level of the development, narrowing the gap in the level of development between Bharmor and other areas of Himachal Pradesh. So as we discussed that Bharmor is backward area in Himachal Pradesh. तो हिमाचल प्रदेश की जो अदर एरियाज है उनसे उसको किस तरह से इकोनॉमिकली इक्वल किया जाए, उसको डेवलप किया जाए कि वो बाकी एरियाज के क्या आ जाए, इकोनॉमिकली डेवलप हो जाए. तो उस गैप को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस. दैट इज द एम और प्रायोरिटी ऑफ द ITDP. Next thing, the highest priority was on development of transport and communications, agriculture and allied activities, as well as social and community services. So this we also discussed yesterday. What are the aims of the ITDP is to provide the employment opportunities, economic opportunities, और economic opportunities कब होगा, जब agriculture allied activities को modern way में क्या किया जाएगा, develop किया जाएगा. Other than this area is somewhat lag behind in transport and communication too. तो transport और communication का development करके भी क्या है, यहाँ पे development हो सकता है. Next one, social community services जो है, इससे भी यहाँ पे development होगा. So these are some of the aims and priorities of the ITDP, that is Integrated Tribal Development Project. Now the most significant contribution of the ट्राइबल सबप्लान्स इन भरमौर इज द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ. तो देखिए वहां पे एजुकेशन लेवल की बात करते हैं, वो भी वो एरिया बहुत लैग बिहाइंड है, बहुत पीछे चल रहा है, अंडर डेवलप्ड है. हेल्थ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्थ केयर फैसिलिटी, इन दैट आल्सो दैट एरिया इज लैग बिहाइंड. That area is lag behind, that area is underdeveloped in terms of healthcare facilities too. Third one, potable water. Potable water is water that is good for drinking. इसमें हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि ये इसमें कोई डिजीज तो नहीं है या ये वाटर गंदा तो नहीं है. तो एकदम जो प्योर फॉर्म ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज पोर्टेबल वाटर. रोड्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे जो भी अपने जिस पे बात करें, सेक्टर्स पे बात करें, इनका डेवलपमेंट करना. बट द विलेजेस लोकेटेड अलोंग द रिवर रवि इन होली एंड खानी एरियाज are the main beneficiaries of economic infrastructural development. The remote villages in Tunda and Kukti area still do not have. तो देखिए यहाँ भी if I'm talking about Bharmor tribal region, here also the Holi and Khani areas जो हैं, होली और खानी हमने पढ़े थे, इसके 4 physiographic division, Tunda, Kukti, Khani and Holi. That is 4 physiographic division we discussed in our previous classes, in which Holi and Khani having somewhat
गुड फैसिलिटी कंपैरेटिवली तुंदा एंड कुक्ति, क्योंकि तुंदा एंड कुक्ति और ज्यादा क्या पड़ जाते हैं, रिमोट एरिया, मतलब और ज्यादा दूर पड़ जाते हैं, अंदर की तरफ रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, द सोशल बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम आईटीडीपी include tremendous increase in literacy rate, improvement in sex ratio, and decline in child marriages. So these are the achievements of ITDP. So these are the main achievements of the ITDP. The first thing which ITDP achieved, that is literacy rate. So literacy rate is achieved by the development of infrastructure, that is for schools. Schools में infrastructure development होने से लिटरेसी रेट क्या हो गया आपका, इंप्रूवमेंट हो गया। फिर हमारे जो लिटरेसी आने से, सोशल अवेयरनेस आने से फीमेल लिटरेसी रेट भी जो है वो भी क्या हो गई, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गई। सेक्स रेशियो आपका इंप्रूवमेंट हो गया। डिक्लाइन इन लोगों में जब अवेयरनेस बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगा, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, एजुकेशन और अवेयरनेस होगी, तो फिर चाइल्ड मैरिजेस भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो डिक्लाइन इन जेंडर इनइक्वालिटीज, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट आल्सो डिक्लाइन, इंप्रूवमेंट इन द चाइल्ड रेशियो, चाइल्ड मैरिजेस आल्सो डिक्लाइन। सो ट्रेडिशनली द गादीज आर had subsistence agriculture. ये ध्यान से देखना, what do you understand by subsistence agriculture? Subsistence agriculture, subsistence here means that is required to stay alive. मतलब इतना ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था उनका कि उनके पास कोई सरप्लस नहीं बचता था, एक्स्ट्रा नहीं बचता था कि वो मार्केट में क्या करे, सेल करे। बस उनके पास जितना प्रोडक्शन होता था वो उतना कंज्यूम, उनकी फैमिली मेंबर्स उतना कंज्यूम कर लेते थे। दैट इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, that is required to stay alive. There is no surplus to sell in the market. So traditionally, if I am talking about the Gadis tribal community, so traditionally the Gadi community had subsistence agriculture, pastoral economy. The pastoral economy, we already discussed about the pastoral economy. Pastoral economy, that economy which come from the rearing of animals. So animals से जो हमारी इकोनॉमी आती है, दैट इज पेस्टोरल इकोनॉमी। तो उनका सिर्फ मेन जो एम्फेसिस रहता था गादी ट्राइबल कम्युनिटी का, दैट इज ओनली ऑन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन फॉर द फैमिली मेंबर्स कंजप्शन एंड ऑन द लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, बट अब जो आईटीडीपी का जो एफर्ट से और भी कुछ सब प्लान्स के एफर्ट से लास्ट थ्री डिकेड्स में, इन द टाइम पीरियड ऑफ 30 year in the 20th century, the cultivation of pulses, पहले वो सिर्फ और सिर्फ फूड ग्रेन्स ही ग्रो करते थे, तो फूड ग्रेन्स की जगह अब वो शिफ्ट हो रहे हैं, कहां से, फूड ग्रेन्स के अलावा भी pulses and other cash crops are also grown. So these pulses and cash crops जो होगी वो क्या करेगी, उनकी इकोनॉमी को क्या किया है, इंप्रूव किया है, इकोनॉमी को इंप्रूव किया है। सो this will improve the economy of the Gadi tribal community. So this is the achievement of ITDP. Now the importance of pastoralism in the economy has declined, as now only about 1/10 of the total households practice transhumance. Now we discussed about the transhumance. That is the movement of people with their herding from plain area to the mountainous area and mountainous area to the plain area during different seasons in the year. तो seasonal जो movement होता था, that is transhumance. तो अब जो गादी ट्राइबल कम्युनिटी है, with the effort of the ITDP, इनका जो है ट्रांसह्यूमेंस प्रैक्टिस में भी क्या आ गई, कमी, और केवल उनकी 1/10 ऑफ द हाउसहोल्ड्स आर नाउ प्रैक्टिसिंग ट्रांसह्यूमेंस। तो Gadis are still very mobile, as a sizable section of them migrate to Kangra. लेकिन देखिए यहाँ भी एक सिचुएशन आ गई, पहले तो वो हर्डिंग के लिए जाते थे, बट अभी भी गादीज जो है वो फिर भी मोबाइल है। मोबाइल में दे आर माइग्रेटिंग, वो मूवमेंट कर रहे हैं। मोबाइल क्या है, मोबाइल इज मूविंग, हमारे साथ ये फोन चलता है, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज मोबाइल। इसे कहीं भी ले जा सकते हो, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज मोबाइल। टेलीफोन जो है वो एक ही जगह पड़ा रहता है, दैट इज टेलीफोन। सो it is mobile. Gadis are still very mobile, as a sizable section of them migrate to Kangra and surrounding area during winter to earn their living from wage labor. तो अभी भी उन्हें एम्प्लॉयमेंट करने के लिए एज अ कैजुअल लेबर कांगड़ा और वाले एरिया में अंदर जाना पड़ता है। So this is all about this
ये आपका जो है रिगार्डिंग केस स्टडी जो आपकी थी ITDP प्रोजेक्ट पे बेसिस, जो दैट इज इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे जो केस स्टडी थी भरमौर रीजन की जो हिमाचल प्रदेश में, वो आपका कंप्लीट हो गया। तो ये केस स्टडी को यू हैव टू practice it, you have to revise it. Now the next topic, that is sustainable development. And sustainable development, what do you understand by sustainable development? We already discussed that sustainable development in which we are able to produce or sustain for an indefinite period, because we are meeting our present needs, but we are not harming our future needs. We are keeping in mind about the demands of the future also. So in sustainable development, we are able to produce or sustain for an indefinite period. We are not damaging the environment. We are not depleting the resources. We are making judicious use of resources. And this is all came under the sustainable development or the concept of the sustainable development. The sustainable development kya hai? So a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their over नीड्स। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट को है हम क्या बोलेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस पैराग्राफ। The term development is generally used to describe the state of particular societies and the process of changes experienced by them. तो अभी तक इन्होंने सस्टेनेबल की बात नहीं की, केवल डेवलपमेंट की बात की है। देखिए डेवलपमेंट है, मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज डेवलपमेंट। अब हमने कौन सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से क्या हो रहा है? अल्टीमेटली हमारा एनवायरमेंट हार्म हो रहा है। वही अगर हम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की जगह, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस की जगह नॉन कन्वेंशनल को अडॉप्ट करें, लाइक इफ वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सोलर एनर्जी से करें, तो वो कैसा डेवलपमेंट हो गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। वी आर मीटिंग अवर प्रेजेंट नीड एंड वी आर नॉट हार्मिंग दी फ्यूचर जनरेशंस नीड। हम दोनों को ही हार्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कैसी एनर्जी है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्लस वो रिन्यूएबल है, रिप्लेनिशेबल है। तो ये आपका रिन्यूड हो जाती है, रिप्लेनिश हो जाती है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इवॉल्व हुआ था 20th सेंचुरी के अंदर, ये कॉन्सेप्ट जो है इवॉल्व हुआ था। और डेवलपमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायनेमिक इन नेचर है, चेंज होता रहता है। Now I'm again reading this paragraph that during a fairly large period of human history, the state of the society has largely been determined by the interaction process between human society and their biophysical environment. The processes of human environment and institution nurtured by our society, while the technology institution have helped in increasing the pace of human environment interaction. So technology, because human with the help of technology make institution and use the resources available in our environment. But in what way human are using these resources is important for our future, because if human is using these resources in an unjudicious, non-judicious way, then these resources will be depleted and will not available for our future generations. Now, while the technology institution help in increasing the thus generating return accelerated technological progress and transformation and creation of institution. अब देखिए institution के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं बात करते हैं, I'm talking about human resource right now, आप आगे जाके ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे, कोई आपने से मान लीजिए IAS बन रहा है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। तो इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है उसके लिए। तो स्कूल इज नाउ वर्किंग एज अ इंस्टीट्यूट फॉर यू टू ट्रांसफॉर्म यू इनटू रिसोर्स। So development is multi-dimensional concept and signifies the positive, irreversible transformation of economy, society, and environment. The concept of development is dynamic and evolved during the second half of the 20th century. In the post-World War II era, the concept of development was synonymous. Synonymous here means identical. So the concept of development is identical to the economic growth. सीधा कॉन्सेप्ट था कि डेवलपमेंट है, इसका मतलब उस कंट्री में क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है। डेवलपमेंट है, इट मींस इकोनॉमिक जीडीपी ज्यादा है, जीएनपी ज्यादा है, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम क्या है? ज्यादा है। पर कैपिटा कंजप्शन भी क्या है? ज्यादा। जैसे अभी भी ये जो
ये जो इंडिकेटर है वो यूज होता है। जैसे देखिए स्टील प्रोडक्शन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टील प्रोडक्शन, तो जिस कंट्री के अंदर पर कैपिटा स्टील कंजप्शन क्या है, ज्यादा है, पर कैपिटा स्टील कंजप्शन ज्यादा है, दैट कंट्री कंसीडर्ड इन द डेवलप्ड कंट्री, कि भाई वहां पे पर कैपिटा स्टील कंजप्शन इज हायर, तो वहां पे जो कंट्री है वो उसको क्या किस लिए कंसीडर किया जाता है, डेवलप्ड कंट्री में। नाउ इवन द कंट्रीज हैविंग हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस स्पीडी राइज इन poverty because of its unequal distribution, as we all know that resources and as well as development, because development is related to the resources, and development too is not same over the space, it's not same over the space, it is unevenly distributed. There are some areas with very rich resources are very developed, and there are some areas which are lag behind. Even they having resources too, but there the utilization of the resources not started yet, and these areas are very underdeveloped or less developed too. So it is an unequal distribution, and unequal distribution resulting in less economic growth resulting in unemployment, unemployment resulting in poverty or low standard of living of people. So in 1970s, the phrases such as redistribution with growth and equity were incorporated in the definition of डेवलपमेंट। सो इन 1970s के अंदर जो कॉन्सेप्ट आया था, वो कॉन्सेप्ट आपका क्या था 1970s के अंदर, 1970s में कॉन्सेप्ट ये था कि डेवलपमेंट किस तरह से हो, डेवलपमेंट हो रीडिस्ट्रीब्यूशन से, कि मान लीजिए जहां पे रिसोर्सेस कम अवेलेबल है, तो जहां पे ज्यादा अवेलेबल है वहां से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, और डेवलपमेंट जो उन एरिया जो लैग बिहाइंड है उनको भी कैसे करना है, वहां पे भी डेवलपमेंट करके उनको इक्वल लेके आना है। इक्विटी हियर स्टैंड्स फॉर, आपके लिए नया वर्ड आया इक्विटी, तो इक्विटी हियर स्टैंड्स फॉर द एसेट्स, एसेट्स जिसमें से लाइबिलिटीज को क्या कर दे हम लेस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जिसमें हम माइनस किसको कर देते हैं, लाइज को, लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं, दैट इज इक्विटी। तो ग्रोथ जो है दैट इज डेवलपमेंट। सो व्हाइल डीलिंग विद द क्वेश्चंस रिलेटेड टू redistribution and equity, it was realized that the concept of development cannot be restricted to the economic sphere alone, because it is now connected to the welfare of the people too. We can't deal this concept only with the economic growth, we have to consider about the welfare of the people too. So this is development. So it also includes the issues such as improving the well-being and living standard of people, availing of the health, education and equality of opportunity, that is also development. पहले development का मतलब केवल इकोनॉमिक ग्रोथ होता था, लेकिन अब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता है। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आज मैं कहता हूँ बीकानेर इज डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इफ आई एम सेइंग बीकानेर इज डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बीकानेर में इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है, लोगों के पास जो है इकोनॉमिकली बीकानेर जो है बहुत आगे, नहीं। अगर मैं बीकानेर को डेवलप बोल रहा हूँ, इट मींस बीकानेर हैविंग वेरी गुड एजुकेशनल फैसिलिटी, बीकानेर के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, इसका मतलब वहां पे हेल्थ सर्विसेज आर गुड, हियर द जो राइट्स पीपल के पास है वो भी क्या अच्छा है। अगर मान लीजिए एक कंट्री है जहाँ डेवलपमेंट तो बहुत है, लेकिन पीपल के पास फ्रीडम नहीं है, वहां के सिटीजन्स के पास फ्रीडम नहीं है। एक कंट्री है मान लीजिए वहां पे डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन वुमेन वहां पे वोट नहीं कर सकती है, तो वो डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि वहां पे आज भी जेंडर इनइक्वालिटीज आर देयर इन दिस कंट्रीज। सो वहां पे ये नहीं हो सकता, वहां पे हम नहीं कह सकते यहाँ डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट का मतलब केवल और केवल इस इकोनॉमिक नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं है जो पहले माना जाता था। पहले जब ये कॉन्सेप्ट आया था तब डेवलपमेंट इज ओनली एंड ओनली, उसको इतना ही मानते थे हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज डेवलपमेंट, बट नाउ इट्स मीनिंग इज समवॉट लार्ज, बहुत लार्ज मीनिंग है इसका। इट इंक्लूड्स द इश्यूज सच एज, सब कुछ इंक्लूड करेगा, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशनल फैसिलिटी, पीपल हैविंग अपॉर्चुनिटीज, पीपल हैविंग राइट्स, पीपल हैविंग ऑप्शंस, वो भी डेवलपमेंट है। मैं कहता हूँ अगर कपड़े भी खरीदने हैं तो कपड़े खरीदने में यहाँ कितनी कंपनीज है, कितने ब्रांड के कपड़े मिल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो डेवलपमेंट कि हमारे पास क्या है, ऑप्शंस है। जहाँ ऑप्शंस नहीं हो, केवल एक शॉप है, हाँ यहाँ से कपड़े ले लो, कपड़े सब है लेकिन यहाँ से, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, तो वो भी डेवलपमेंट नहीं है।
That is also not development. So by 1980s, development emerged as a concept encapsulating widespread, improving in social as well as material well-being of all in the society. तो 1980s के पास ये जो कॉन्सेप्ट है, इसने क्या किया है, वाइड स्प्रेड इंप्रूवमेंट किया है सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के वेलबींग के लिए. Now, the notion of sustainable development emerged in the wake of generalized in the awareness of environmental issue too. अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आया, वो किसके लिए आया है कि हमें एनवायरमेंट को हार्म नहीं करना है, हमें रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं करना. We don't have to deplete the resources, because this development now is only development that is not a complete development. Complete development, that is sustainable development, in which we meeting our present needs without harming our future requirements. So the notion means opinion. The opinion of the sustainable development emerged in the wake of generalized is the awareness of the environmental issues. Environmental issues in the late 1960s in the Western world. और Western world में क्यों start हुआ, क्योंकि वहाँ पे factories, जो traditional factories develop हुई, जो smoke stack industries develop हुई, उनकी वजह से air pollution की वजह से लोगों को pulmonary diseases are those diseases which are related to the respiratory problems. Respiration से जो related diseases है, वो कौन सी diseases हो गई आपकी, पल्मोनरी डिजीजेस. तो लोगों को जब ये होने लगा तो लोगों को रियलाइज हुआ, फिर जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स आई, ग्लोबल प्रॉब्लम्स के अंदर, जैसे आपकी ग्लोबल प्रॉब्लम्स के अंदर जो मेन आई, ग्लोबल वार्मिंग आई, जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ा, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स रिफ्लेक्ट हुई, देन देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और इसके अंदर सबसे बड़ा एक फैक्टर आया था पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, कि पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो रिसोर्सेज का ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा और रिसोर्सेज ज्यादा जल्दी डिप्लीट होगी, तो पॉपुलेशन कंट्रोल को भी करना, क्योंकि पॉपुलेशन इज टोटली डिपेंड्स अपॉन दी resources. So it reflected the concern of people about undesirable effect of industrial development on the environment. The publication of the population bomb, तो population bomb की पब्लिश्ड हुई थी, एनरिच ने की थी 1968, और द लिमिट्स टू ग्रोथ बाय मेडोव्स ने की थी 1972. तो इन सब जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, तो इन्होंने क्या है, लोगों के अंदर अवेयरनेस है कि देखिए इस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो व्हाट विल बी आवर फ्यूचर क्या होगा. तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ मॉडल्स दिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और कुछ एक क्या हुई, इन पे समिट्स हुई, मीटिंग्स हुई, आवर कॉमन फ्यूचर, और भी जो है ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए. तो दिस इज अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यस, सो regarding sustainable development, one World Commission on Environment and Development report gave the Brundtland report, and that Brundtland report defined the sustainable development. The title of the Brundtland report was Our Common Future. When it was published in 1987. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग. सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब भी हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है जिसमें एनवायरनमेंट को हमने हार्म नहीं किया, इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक सभी प्रकार के एस्पेक्ट्स को क्या है, एक बैलेंस्ड वे के अंदर हम लेके चल रहे हैं. यस. Now the next case study, Indira Gandhi Canal Command Area. Indira Gandhi Canal Command Area, that is a case study on sustainable development. ये sustainable development पे case study है आपकी, तो अभी हम इस पे बात करेंगे. Any doubt regarding that sustainable development? Okay, students. The next case study is based on the sustainable development, and the case study is of Indira Gandhi Canal Command Area. You can see this picture or map that is given on your screen. You can see this is the western part of Rajasthan, Ganganagar, thereafter Bikaner, Jaisalmer and Bardmer. These are 4 districts in the western part of Rajasthan or on the international बाउंड्री लाइन, सॉरी ये अपनी इंडिया की वेस्ट जो अपनी बॉर्डर है उसकी जो बॉर्डर पे टचिंग जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दे आर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का थोड़ा सा एरिया जो इसमें कवर होता है. यस, सो दिस इज केस स्टडी. और ये देखिए अब जो इसके अंदर जो आपकी
चल रही है। ये तो आपके इंटरनेशनल बाउंड्री को डिपिक्ट कर रही है, ये वाली लाइन, दैट इज बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। और यहाँ पे आपकी कौन सी कैनाल चल रही है, दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल इज फ्लोइंग। तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है, इसमें कौन कौन से एरियाज आ रहे हैं, कौन कौन से एरियाज को ये फायदा दे रही है, यू कैन सी। सो यस, सो इंदिरा गांधी कैनाल का जो प्रीवियस नेम था दैट वाज राजस्थान कैनाल, बट आफ्टर द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका नाम चेंज करके, इस कैनाल का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, इंदिरा गांधी कैनाल जो है रख दिया गया था। सबसे पहले इसको किसने बनाया था, किसने प्रोजेक्ट को कंसीव्ड किया था, दैट इज कंवर सेन। कंवर सेन आपके बीकानेर से ही थे, हमारे यहाँ के बीकानेर के ही थे। 1948 के अंदर इसको जो है उन्होंने एक तरह से क्या किया था, रोड मैप जो है इसका तैयार किया था, मैप तैयार किया था कि हाँ, क्योंकि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कैनाल इन दिस एरिया, बिकॉज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान कम अंडर द थार डेजर्ट। दिस इज द थार डेजर्ट एरिया, ये पूरा थार डेजर्ट एरिया है। और थार डेजर्ट एरिया में आपका जो है, there is a scarcity of rainfall, there is a need of rainfall for agriculture, but even drinking water भी जो है पूरे अमाउंट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ये आपका इसलिए जो है इंदिरा गांधी कैनाल जो है इसकी नीड हुई। तो वी विल डिस्कस